Arcadia app. So let us start with our next point, and that is tourism. When we talk about tourism in Maharashtra, we have different places which attracts tourism. For example, Gateway of India, Ajanta Ellora Caves, Elephanta Caves, and so on, right? And because of such historical caves and monuments, we are able to attract tourists from different states and abroad as well. To promote the state as a leading tourist destination, the government formulated a policy which was known as Maharashtra Tourism Policy, formulated in the year 2016. Now, obviously, tourism remains one of the important areas which we are required to be promoting. बहुत ज़रूरी हो गया है टूरिज़्म को प्रमोट करना, बिकॉज ऑब्वियसली ये सेक्टर में, ये एरिया में बहुत ही पोटेंशियल है. तो ये प्रमोट करने के लिए इस सेक्टर को भी हम ऊपर ला सके, इस सेक्टर में भी हम ग्रोथ रिकॉर्ड कर सके, इसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई नोन एज द महाराष्ट्र tourism policy, which was established in 2016. Now, what was this Maharashtra tourism policy of 2016? The objectives included to make Maharashtra a leading tourist destination by 2025. Now, if we compare to various other states, Maharashtra lags behind. It is well behind in the area of tourism. So, the tourism policy was formulated in a way that at least by 2025, we can make Maharashtra the number one destination in terms of tourism. To attract investment to the tune of 30,000 crore. Any sector that you want to develop, you need finance. So in case of tourism sector as well, the government planned to attract an investment of 30,000 crores, which can in turn be invested in this tourism sector, and we can develop the sector equally. To create 1 million additional jobs in the industry. ऑब्वियसली अगर आप 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे और ये सेक्टर को डेवलप करोगे, तो ये सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारा एम है कि कम से कम 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स जो है, हम टूरिज़्म इंडस्ट्री में ये और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ला सके. Maharashtra Tourism Development Corporation is the nodal agency for implementation of this policy in the state. Now, obviously, the policy that we form is formulated by the state government. बट ये पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम दिया गया था MTDC को, राइट? ये मेन नोडल एजेंसी है जिनका काम क्या है, तो इस टूरिज्म पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, सो दैट हमें जो इससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो हम कर सके. It organizes different events such as Ellora Festival, Elephanta Festival, and so on. Yes, to promote more tourism, we have been organizing such festivals where a lot of celebrities, singers, dancers, they are invited. Then we sell the passes to different people, right? So what happens is we are somewhere able to increase the number of tourists that visit these places, especially during the festivals. MTDC has also launched the scheme of Mahabrahman to bring different experimental projects such as agro-tourism, village tourism, food tourism, safaris, tribal lifestyle under one roof.
अभी महाब्रह्मांड का क्या एम था वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। काफ़ी ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है। अब काफ़ी ऐसी जगह भी है जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है या डिफरेंट केव्स है जो एनी विच वेज टूरिस्ट स्पॉट्स है। बट इनका एम क्या था कि अगर हमें अंडर डेवलप्ड एरियाज है जैसे एग्रीकल्चरल एरियाज, राइट, विलेजेस, जहाँ पे टूरिज्म इतना ज़्यादा नहीं है या लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते नहीं हैं, क्यों ना इन एरियाज को भी प्रमोट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ टूरिज्म। जैसे एग्रो टूरिज्म में क्या होता है, तो हम ऐसे विलेज एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती है उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग वहाँ पे रिलैक्सिंग के लिए जा सके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ देख सके, फ्रेश आप वहाँ पे जाके सब्जी लाकर फ्रूट्स लाकर खा सको, राइट। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल हुडा पार्टी। अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, हुडा पार्टी, ये महाराष्ट्र में होता है। देन बहुत सारी सफारीज, ट्रैकिंग, फिशिंग, हॉर्स राइडिंग, इन चीज़ों को प्रमोट कर कर एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, फूड टूरिज्म, जंगल सफारीज, एक्सपीरियंसिंग द लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल पीपल, इन सबको भी टूरिज्म में इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट इन एरियाज को भी हम एक्सप्लोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ टूरिज्म, राइट। करंटली देखा जाए तो महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, कि हम ये टूरिज़्म एरिया में भी आगे आ सके, इसमें भी नंबर वन हो सके। और अगर जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन की गई है, जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं, अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स ज़रूर देखने मिलेगा। आई होप आपको ये टूरिज्म एरिया, ये टूरिज्म एज एन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ज़रूर समझ में आया होगा।